الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة على النبي وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں اور برکات بے شمار ہیں. ایک فضیلت سنتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ مر جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی واقعہ سنا ہو، لیکن توجہ سے سننا ہے، پھر آپ کو مزہ بھی آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ مر جاتا ہے تو لوگ اس بندے کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے: موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر میرا ایک پیارا، میرا سونا بندہ فلاں گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے. موسیٰ جاؤ وہاں پر اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، اسے کفن دو، اس کی نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دو. حضرت موسیٰ جاتے ہیں. جب اس جگہ پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گندگی کے ڈھیر پر ایک بندہ پڑا ہے. جب اس کے پاس جاتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں: موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پاک ہیں، اور یہ شخص بڑا گنہگار ہے. زمانے کا کوئی ایسا عیب نہیں جو اس شخص میں نہ پایا جاتا ہو. آپ پاک ہیں، آپ اس شخص کو ہاتھ مت لگائیے گا. لیکن حضرت موسیٰ کو رب کا حکم ہوا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ اسے اٹھاتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن دیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. اس کے بعد کوہ طور پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں: یا باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے؟ تو کہہ رہا تھا میرا پیارا ہے، میرا بڑا نیک بندہ ہے، لیکن لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ شخص بڑا گنہگار ہے. زمانے کا کوئی ایسا عیب نہیں جو اس بندے میں نہ پایا جاتا ہو. تو سنیے رب نے کیا کہا. رب نے کہا کہ اے موسیٰ اذا کشفت التوراۃ، اے موسیٰ جب یہ تورات کو اٹھاتا، فنظر الی اسم محمد، جب میرے سونے کے نام کی طرف دیکھتا، اے موسیٰ کپلا چومتا، صلی علیہ اور درود پاک پڑھتا. اے موسیٰ مجھے اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ غفرت ذنوبہ، میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. اور اے موسیٰ وزوجتہ 70 حورا، اور جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح. موسیٰ مجھے اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ غفرت ذنوبہ، میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. وزوجتہ 70 حورا، اور جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح. ہم نے غور کرنا ہے اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ آج کے اس دور میں کتنا بھی گنہگار ہو، ہم اسے پھر بھی غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھا کے اس کا دفن تو کرتے ہیں. لیکن اتنا گنہگار بندہ لوگوں نے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. لیکن مقام کیا ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ بندہ اتنا گنہگار، مقام یہ ملتا ہے کہ وقت کر بھی غسل دیتا ہے. آج کی اس دور میں دیکھیں کوئی پیر صاحب نماز جنازہ پڑھا دے، ہم فخر سے کہتے ہیں فلاں پیر صاحب نے پڑھایا. کہنا بھی چاہیے، لیکن وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے کہ جس کا جنازہ پاک نبی پڑھا رہا ہے. اور یہ مقام کیسے ملا؟ وہ بندہ جب بھی حضور کا نام آتا انگوٹھے چومتا، حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتا. وہ بندہ تھا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی بندہ پڑھے تو اسے یہ مقام ملے. اگر کوئی حضور کا امتی، حضور کو نبی جان کر، آخری نبی جان کر حضور کا امتی شوق اور محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے گا، سوچیے اسے کیا مقام ملے گا. شوق اور محبت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھی. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.
शब नहीं मिलती कहीं से सकूं की दौलत, आका तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। और गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, देखते ही तुझको प्यास बुझा लेते हैं। और आका की सना मानी दर असल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। मैंने जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की है, रब तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो तेरे बंदे हैं, और अगर बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। आज हम सुनेंगे कि हुजूर अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे। जब हुजूर पैदा हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो अभी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो एक ही बात आए मुबारक में जारी है, रब्बी हब्ली उम्मती। देखिए कि कोई बच्चा पैदा हो तो उसे अपना नहीं पता होता, लेकिन हुजूर अभी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अभी दुनिया में आ रहे हैं और अपनी उम्मत की फिक्र पड़ी है और क्या रही है, रब्बी हब्ली उम्मती। कितनी मोहब्बत करते थे हुजूर अपनी उम्मत से। इस तरह हुजूर के बारे में आता है कि हुजूर एक मरतबा कहीं चले गए, सहाबा बड़े परेशान हो गए कि हुजूर कहाँ चले गए। सहाबा हुजूर को ढूंढते हैं, कुछ सहाबा मदीने की गलियों में ढूंढ रहे हैं, कुछ मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ लिपट कर आते हैं। सहाबा जब हुजूर को ढूंढते ढूंढते जंगल में जाते हैं तो एक चरवाहा मिलता है, उस चरवाहे के पास जाते हैं, कहते हैं चरवाहे तूने हमारे नबी को तो नहीं देखा। वो चरवाहा कहता है मैं तो तुम्हारे नबी को नहीं जानता। वो सहाबा वापस पलटते हैं तो वो जो बकरियां चराने वाला चरवाहा होता है वो कहता है अरे जाने वालों जरा सुनो, मैं तो तुम्हारे नबी को नहीं जानता, लेकिन सामने गार में एक बंदा आया है, 3 दिन से बड़ा रो रहा है। मेरी बकरियां पहले चरती थी, इतना दूध नहीं देती थी, अब चरती भी नहीं है, गार के सामने जाकर बैठ जाती है। वो बंदा बड़ा रो रहा है, 3 दिन से बड़ा रो रहा है, और जब वो बंदा रोता है तो मेरी बकरियां भी उसको देखकर रोना शुरू कर देती है। सहाबा समझ जाते हैं कि वो हुजूर ही है। सहाबा जब गार के अंदर जाते हैं, देखते हैं हुजूर का सर सजदे में है, हुजूर का सर सजदे में है। सहाबा जब पास जाते हैं, हुजूर को उठाते हैं, हुजूर जब उठते हैं कहते हैं सहाबा अगर तुम थोड़ी देर ना आते मैं अपनी सारी उम्मत को बख्शवा देता। सहाबा तुम थोड़ी देर ना आते मैं सारी उम्मत को बख्शवा लेता। हुजूर अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं। हज़रत इदरीस के बारे में आता है, एक फरिश्ता आपको आजमाने के लिए इंसानी शक्ल में आया और कहने लगा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आपने कहा मैं दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि दोस्ती की वजह से मेरी इबादत में खलल आए। वो कहने लगा कि आप दोस्ती कर लें तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो कहा ठीक है, उनकी दोस्ती हो जाती है। तो हज़रत इदरीस जब इबादत करते थे ना तो 3 दिन तक कुछ खाते ही नहीं थे। जब खाते तो उसको देते तो वो नहीं खाता। आप समझ गए कि ये नूरी मखलूक है। आपने उस फरिश्ते से कहा कि मैंने मौत का जायका चखना है। फरिश्ता रब तआला की बारगाह में अर्ज करता है, बारिक तआला तेरा बंदा कह रहा है मौत का जायका चखना का, ठीक है चखा दो। हज़रत इदरीस को मौत आती है, फिर आपको जिंदा कर दिया जाता है। फिर हज़रत इदरीस उस फरिश्ते से कहते हैं कि मैंने जन्नत की सैर करनी है। फरिश्ता रब तआला की बारगाह में अर्ज करता है, बारिक तआला तेरा बंदा कह रहा है कि जन्नत की सैर करने का, ठीक है करा दो। हज़रत इदरीस जन्नत में जाते हैं, जन्नत की सैर कर सकते हैं। फरिश्ता कहता है चलो इदरीस वापस चलते हैं। हज़रत इदरीस कहते हैं मुझे वापस नहीं चलना, मुझे यहाँ पे ही रुकना है। तो फरिश्ता रब तआला की बारगाह में अर्ज करता है, बारिक तआला तेरा बंदा कह रहा है यही रुकना, ठीक है रहने दो। हज़रत इदरीस अब यहाँ पर देखें, जब हज़रत इदरीस जन्नत में गए, जन्नत को देखा, उम्मत को छोड़ दिया, लेकिन जब बारी आती है मेरे और आपके लजपाल आका की, जब बारी आती है साकी कौसर की, जब बारी आती है रहमतुल लिल आलमीन की, जब बारी आती है आमिना के लाल की, तो उस वक्त जब हुजूर जन्नत में गए, जन्नत को देखा, जन्नत की सैर की, जब शब-ए मेराज की रात रब को भी देखा, रब से हम कलाम भी हुए, रब ने कहा मांग तो सारे जो मांगना है। उस वक्त भी हुजूर ने अपनी उम्मत को याद रखा। जब रब ने ताला ने कहा कि मांगो सारे जो मांगना है, उस वक्त हुजूर ने रब से कहा रब्बी अपनी उम्मत नारा तकबीर, नारा रिसालत, हैदरी, सैयदी मुर्शदी, मुर्शदी, आले सुन्नत। मेरे रब मेरी उम्मत पैदा हुए तो उम्मती, जवान हुए तो
उम्मती। जन्नत में गए, जन्नत को देखा, जन्नत की सैर की, रब को देखा, रब से हम कलाम भी हुए। रब ने कहा मांगो सोनिया जो मांगना है, तब भी रब्बी अपनी उम्मती। हुजूर कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी उम्मत से। हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदुन नास यौमल क़ियामा व हल तदरून बिमा ज़ाका यजमअल्लाहु यौमल क़ियामती अल अव्वलीन वल आखिरीन फी सईदिन वाहिद। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं और फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा तुम जानते हो कि क़यामत वाले दिन मैं लोगों का सरदार होऊंगा, और क्या तुम जानते हो कि रब ताला बरोज़ क़यामत चुलू और अगलू को एक मैदान में कैसे जमा फरमाएगा? हुजूर फरमाने लगे फयकूलु बादुन नास लिबादिन, तो बाद लोग बात से कहेंगे ईतु आदम अलैहिस्सलाम, चलो चलो क़यामत वाला दिन होगा। तो हुजूर फरमाने लगे कि बाद लोग बात से कहेंगे ईतु आदम अलैहिस्सलाम, चलो चलो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। फयातुना आदम, लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। फयकुलु लहुम आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला नूह, अरे जाओ जाओ आज मुझे अपनी पड़ी है, आज किसी और के पास जाओ, आज हज़रत नूह के पास जाओ। फयातुना नूह, लोग हज़रत नूह के पास जाएंगे। फयकुलु लहुम नूह, हज़रत नूह से कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला इब्राहीम, अरे जाओ जाओ आज मुझे अपनी पड़ी है, आज किसी और के पास जाओ, आज इब्राहीम के पास जाओ। फयकुलु इब्राहीम, लोग हज़रत इब्राहीम के पास जाएंगे। फयकुलु लहुम इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम उनसे कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला मूसा, अरे जाओ जाओ आज मुझे अपनी पड़ी है, आज किसी और के पास जाओ, आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फयकुलु मूसा, लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। फयकुलु लहुम मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला ईसा, अरे जाओ जाओ आज मुझे अपनी पड़ी है, आज किसी और के पास जाओ, आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फयकुलु ईसा, लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। फयकुलु लहुम ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, अरे जाओ जाओ आज मुझे अपनी पड़ी है, इज़हबू इला मुहम्मद, आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। हुजूर फरमाते हैं फयातूनी फयकुलूना या मुहम्मद अंत रसूलुल्लाह, लोग मेरे पास आएंगे कहेंगे या रसूलुल्लाह आप खातमुन नबिय्यीन हैं व खातमुल अंबियाई व गफरल्लाहु लका मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़रा, या रसूलुल्लाह आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आपकी वजह से रब ताला ने लोगों के अगले पिछले के गुनाह को माफ फरमा दिया। इश्फ़ा लना अला तरा मा नहनु फ़ीही, या रसूलल्लाह आप हमारी शफाअत फरमाएं उस हाल पर जिस पर आप हमें देख रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं फ़ांतलिकु फ़ाति तख्तल अर्श, मैं रब के अर्श के नीचे जाऊंगा। फ़ाक़ऊ साजिदन लिरब्बी, मैं अपने रब को सजदा करूंगा। सुम्मा यफ़हिल्लाहु अलैया व युल्हिमुनी मिन मुहाब्बतिही व हुस्नि सनाई अलैहि शैअन लम यफ़्तह लि अहदिन मिन क़ब्ली, तो रब ताला मुझ पर वो हमद व सना बयान फरमाएगा जो आज से पहले किसी पर न बयान फरमाई होगी। फयुक़ालु या मुहम्मद, कहा जाएगा सोनिया इरफ़ा रासका, सर उठा सर उठा, सवाल कर अता किया जाएगा। इश्फ़ा शफ़ा, शफ़ाअत कर कबूल की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं फ़ारफ़उ रासी, मैं अपना सर उठाऊंगा। फ़ाक़ूलु या रब्बी उम्मती उम्मती, मैं कहूंगा मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत, मैं कहूंगा मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत। फ़युक़ालु या मुहम्मद अदखिलिल जन्नता मिन उम्मतिका मन ला हिसाब अलैहि मिन बाबिल अयमनी मिन अबवाबिल जन्नती, कहा जाएगा सोनिया अपनी उम्मत में से जिसे चाहते हो बगैर हिसाब किताब के जन्नत के दरवाजों में से सीधे दरवाजे से दाखिल कर दो। हुजूर फरमाते हैं वहुम शुरकाउ नासी फीमा सिवा ज़ालिका मिनल अबवाब, और लोगों सुनो मेरी उम्मत का ये खासा होगा कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से जाएगी जन्नत में जाएगी। वहुम शुरकाउ नासी फीमा सिवा ज़ालिका मिनल अबवाब, लोगों सुन लो मेरी उम्मत का खासा होगा कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से जाएगी जन्नत में जाएगी। कहेंगे सब नबी इज़हबू इज़हबू इला गैरी, मेरे और आपके हुजूर के लब पे अना रहा। हमने सुना कि हुजूर अपनी उम्मत से कितने मोहब्बत, पैदा हुए उम्मती उम्मती, जवान हुए उम्मती उम्मती, जन्नत देखी उम्मत में उम्मती उम्मती, रब को देखा। हत्ता कि हमने सुना कि क़यामत वाले दिन अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी,
सब अंबिया कहेंगे जाओ जाओ किसी और के पास जाओ, आज मुझे अपनी पड़ी है। लेकिन जब हुजूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, जब हुजूर की उम्मत हुजूर के पास जाएगी और हुजूर रब ताला को सजदा करेंगे और शिफात करेंगे, तो रब ताला शिफात को फरमा देगा। हुजूर अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं और हम सोचें कि हम हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। हुजूर अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब देखिए हमने गौर करना है कि हुजूर ने जो हमें तालीमात दी क्या हम उन पे अमल करते हैं। शब मेराज की रात जो हुजूर को तोहफा मिला नमाज का, क्या हम नमाज पढ़ते हैं? हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? हमारे घर वाले नमाज पढ़ते हैं? हमने ये गौर करना है। फरमाया कि हुजूर से इतनी मोहब्बत कर लो कि जब कब्र में जाए तो फरिश्ते ना पूछे माकुम तकुलू फी हक़ी हाज़िर रजुल, हुजूर खुद कहे कि जाने तो मेरा गुनाह आया। हमें हुजूर से इतनी मोहब्बत आनी चाहिए कि हुजूर खुद ही कहे कि जाने तो मेरा गुनाह आया। कब होगा? सिर्फ हम नारे लगाएंगे गुलामी रसूल में मोहतबी कबूल, जो हुजूर ने हमें तालीमात दी हम पे अमल ना करें तो ये कैसे होगा? हमने सुना कि हुजूर कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी उम्मत से, तो अभी हमने मिल के नारा लगाना है। ये देखिए कि कितनी किस्मत है। इस मस्जिद का नाम भी है मस्जिद फैज़ान आखिरी नबी, और वही नबी जिनके आज हम नाम गा रहे हैं, जिनकी हमने महफिल सजाई है, क़यामत वाले दिन वही नबी हमारी शफ़ाअत भी फरमाएंगे। आपने मैंने कहना है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपने क्या कहना है? सबसे आखिरी नबी। क्या कहना है? ये मस्जिद की दीवारें एक एक चीज गवाह बन जाए, क़यामत वाले दिन गवाही दे कि ऐ बारी ताला कि इन्होंने जिंदगी में फिर खयात दुनिया की जिंदगी में इन्होंने ये नारा लगाया था, एक एक चीज गवाही दे हमारे हुजूर के खातमुन नबी की। उससे जोरदार नारे का जवाब देना है, मुहम्मद